Common People with Common Views, a podcast which is without any filter, editing checks, and it is in conversation with non-celebrities. Hi guys, welcome back to The Average Vlogs. And आज हम कुछ यूनिक करने वाले हैं। तो आज हम अपनी नई पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है Common People with Common Views। तो आज हमारे सबसे पहले गेस्ट है Mrs. Neelu Kalja. So today's episode is going to be something special as this is the first episode, the inauguration episode. So we're not going to talk about anything new or your opinions. We're going to discuss and just talk about how was the year 2023 from our angle, from a global perspective, commenting on the pop culture, political news, social news and everything. So first I would like to ask, in which language are you comfortable? Hindi or English? English. Cool. So now first I want to say, how was year 2023 for you? Not very good, not very bad. It's fine. Just an average year, like No, a not channel. average year, because I think I took everything with acceptance mode. Nothing special. Either there is some bad news or some good news. Everything is acceptable because I think life is a name of the change. How was the Ambani festival wherein all the Hollywood stars were invited in the Ambani Museum showcase? Oh, it was wonderful. The big powerful woman. Neeta Ambani ruling everyone. Big achievement for us also. I like this way also. We have a person like Ambani in our Yeah. nation who can call every single person. This for is part. also good achievement for our country. So let's start with pop culture. So I would like to say, did you enjoy watching Hollywood movies? Because this was the first time when Hollywood movies were allowed in the Indian market. For example, Barbie. So Yes. You loved Barbie. Yes. How it tackled the global issues, patriarchy and all of that. Yes. एक आपको ना मैसेज दे रही है अच्छा। कि हाउ वुमेन एम्पावरमेंट का आई टुक इट दिस वे सो आई लाइक द बार्बी एंड इवन द पिक्चर्स एंड बार्बी हाउस also attracts even in this age. एंड इस पॉप कल्चर में एक और हम पॉप कल्चर की बात कर रहे हैं तो शाहरुख खान का भी कमबैक हुआ था इस ईयर Yes, एंड आपने तीनों मूवीज देखी फर्स्ट डे फर्स्ट शो मुझे इतना तो पता है आपका एंड अब मैं चाहता हूँ कि आप तीनों मूवीज का रिव्यू दो मुझे मैं आपसे पूछूंगा फिर मैं अपने भी व्यूज बताऊंगा एज अ शाहरुख खान फैन एंड यू आर लाइक नॉट एट ऑल अ शाहरुख खान फैन तो ईयर स्टार्ट हुआ था अगर आप लोगों को भी याद हो पठान से बेशर्म रंग ने जो कंट्रोवर्सी कर दी तो सबसे पहले डू यू सपोर्ट दैट कंट्रोवर्सी जो हुई थी ऑरेंज No, nothing is there about controversy. If you wear केसरिया रंग तो इसका मतलब ये नहीं आप कंट्रोवर्सी कराना है केसरिया रंग only symbol of our flag is not. So this was बकवास controversy and कॉन्स्पिरेसी के साथ मूवी वालों ने करी होगी ताकि yes, I agree. And about movie, this movie is okay for me. ना सिर ना पैर पता नहीं कित्थों. फिर आई जवान आई थिंक यू रियली लाइक दैट मूवी जवान Yes, Jawan is very good message giving movie and very political correct movie because in आपकी this वोट की movie- कीमत समझाती है वो हाँ आपको आपके वोट की कीमत समझाती है आपको आपकी पावर बताती है तो लोगों को इस पिक्चर को ऐसे देखने के बजाय कि शाहरुख खान की पिक्चर है उनको उसका जो मैसेज समझना बहुत जरूरी है एंड फिर मेरी फेवरेट आती है डंकी Yes. डोंकी कहो या डंकी कहो कैसी लगी आपको डंकी मूवी बहुत अच्छी थी जबकि जब आ रही थी तो मैंने तुमसे बात भी की थी कि ये पिक्चर चलेगी नहीं हाँ, तो मैंने कहा था चलेगी। जहाँ पे एनिमल आ रही है जहाँ पे सलार, सलमान खान की हाँ, आ रही है टाइगर। सलार आ रही है ये सारी पिक्चरों के साथ डंकी बड़ी एवरेज बजट के साथ एवरेज मूवी storyline। अपने उससे लग रही थी पर डंकी भी मैसेज गिविंग मूवी है बहुत अच्छा मैसेज था कि भी एवरी पुअर पर्सन हैज राइट टू माइग्रेट जहाँ तक समझती हूँ इस पिक्चर में हमें ना अपनी फ्रीडम की वैल्यू पता चली कि हम फ्रीडम कितनी बड़ी बात है कि अगर हम किसी और कंट्री में हैं तो हम किसी से हेल्प सीख करने में भी बहुत हेजिटेट फील करेंगे और हेजिटेट क्या फील करेंगे हम श्योर भी नहीं है कि वो हमें हेल्प देंगे कि नहीं देंगे आप सपोर्ट करते हैं जो फॉरेन जाना चाहते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप उनके अगेंस्ट हो या उनके फेवर में हो या क्या हो ना मैं फोर्स करती हूँ ना मैं उनके अगेंस्ट हूँ ना मैं उनके It all depends on मैं life. चाहती हूँ डिपेंड्स ऑन देयर लाइफ कुछ बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं
उनकी बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो मैं डेफिनेटली उनको फेवर करती हूँ वो जाए। कुछ लोग फैशन के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको फेवर नहीं करती कि हाँ उस फैमिली का बच्चा गया है तो इस फैमिली ने भी जाना। अगर आपको आपकी कंट्री से भी कम अपॉर्चुनिटी मिली, अगर आपकी यहाँ फुलफिल हो रही है तो आप यहीं रहो। और कईयों को अगर वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी मिल रही है तो मैं उनके फेवर में हूँ, जाना चाहिए। और कि लाइफ एक ही है, लाइफ तो एक ही है, एक्सपोजर तो मिलना है, एक्सपोजर भी मिले, आप अपने आप को स्टेबलाइज भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं। क्योंकि पर आप जाओ वो सीधे तरीके से, कोई डंकी मत जाओ कोई फ्यूचर नहीं है। फिर नेक्स्ट मंथ आते हैं हमारे साल के 2000 के नोट्स बैन हो गए। I mean, इतना शॉक नहीं लगा जितना हमें उस दिन 8 नवंबर 2016 को लगा था जब 500,000 के हुए थे। मुझे याद आ रहा है कि हम आप लोग कहाँ थे? सोलन में थे। अच्छा। तो हम बर्थडे पार्टी में थे कि चाची चाचा से पूछना घर में 2000 के नोट्स कितने हैं। तो मैंने कहा बोल क्या चाहिए तुझे, तो बोलता है वो बंद हो रहे हैं मेरे पास तो एक भी नहीं है, आप बताओ आपके पास है तो मैं सारे आपके निकाल दूं। मैं तो ठीक थी, पर मेरे हस्बैंड भी थोड़े ठीक, थोड़े नॉर्मल थोड़े थे, पर बाकी सारे भी जनित हो गई। थोड़े पहले टाइम तक तो नॉर्मल सबने बिहेव किया, फिर अचानक से सबको लगा चलो वापस चले पता नहीं सबको अपने 2000 के नोट्स तो हम बल्कि एक दिन पहले ही सोलन से वापस आ गए। तो मैं उसे जान के 4050 रुपए 4100 भी है, तो मैं उसे बोलती थी उसको उठा के ना सीधे 6000 मैम ये तो चाहिए, मेरे पास नहीं है। अब वो कुछ करेगा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेके जाते थे, फिर मैं हंसते हुए आती थी, मैंने 3 नोट चला दिए। क्या बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह खेलती है, मैंने 3 नोट चला दिए, मैंने 2 नोट चला दिए। एंड फिर मई में और भी चीजें हुई। आपको पता होगा आपके पोते के एग्जाम्स थे, 10th के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स थे। मेरा तो पोता नहीं है, पहले तो दोता है। कोई बात नहीं, ग्रैंडसन बोल देते हैं। ग्रैंडसन। तो उसमें बहुत सारे आईबी के बच्चे रोए थे क्योंकि बोर्ड एग्जाम पहली बार कहते पैंडेमिक के बाद पहली बार ओरिजिनल टाइप में बहुत मुश्किल बनाया था। तो आप बोलना चाहोगे कि आईबी बोर्ड, सारे चाहे आईबी हो या सीबीएसई हो, इन बोर्ड्स को एग्जामिनेशन मुश्किल बनानी चाहिए या और इजी बनानी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, ना मुश्किल बनाना चाहिए ना इजी बनाना चाहिए। उन्होंने सब कुछ आपको पढ़ाया होता है, जो भी आता है आपको आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं आता। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, अगर आप उसको समझ के पढ़ते हो तो आपके लिए हर चीज ठीक होती है। अगर आप उसको समझ के ही नहीं चल रहे, आप सिर्फ उसको रटोफाई कर रहे हो, तो आपके लिए हर चीज मुश्किल है। चाहे कुछ भी आपसे पूछ लो, तो आप हमेशा समझ के पढ़ो, उसकी डेप्थ तक जाओ तो इजी है ना। वो मुश्किल बनाते ही नहीं है, वो इस तरह का बनाते हैं कि सबको समझ आए पेपर। पढ़ा हुआ है तो आप आंसरेबल हो, नहीं पढ़ा ही हुआ तो फिर तो आपको चाहे कुछ भी कह दो आपको मुश्किल ही लग रहा है। फिर साल में आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बिग बॉस OTT सीजन 2 आया। एंड बिग बॉस थोड़ा सा इंडियंस के लिए ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा कि हम इंडियंस के लिए, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस के लिए बिग बॉस इज अ वेरी बिग इवेंट। आई एम बिग फैन ऑफ बिग बॉस। बिग बॉस सबसे बड़ी फैन है क्योंकि आप तो सिर्फ एपिसोड नहीं देखते, आप रिव्यूज सुनते हो, रिव्यूज प्रोमो सुनते हो, 4 लोगों के रिव्यूज भी देती हूँ। जैसे हम हॉलीवुड में एक मूवी के इतने रिव्यूज करते हैं, उनकी थ्योरीज बनाते हैं, इंडिया में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में और स्पेशली इस घर में हम बिग बॉस की थ्योरीज बनाते हैं कि बिग बॉस से अब क्या होएगा। हम जानते हैं वो कितना स्क्रिप्टेड है, लेकिन मजा आता है। इट्स अ स्ट्रेस बस्टर और लोगों को रटते हुए देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। देखो, स्ट्रेस बस्टर है। कुछ लोगों के लिए इसके दिमाग में ये भी एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि चलिए लड़ाई का नहीं, आपको बड़ी नॉलेज देता है, आपको आपका स्टैंड लेना सिखाता है, मेंटल स्ट्रेस देता है, मेंटल आपको स्ट्रेस बस्टर तो है ही है, आपको आपका स्टैंड लेना सिखाता है। फिर आपको पता भी चलता है कि आपकी नेचर कैसी है, तो आप उनसे कई बार सोचते हो, और आप जब उन कैरेक्टर्स को देखते हो तो आप में भी जो खामियां होती है तो आप सोचते हो यार मेरे में भी ये कुछ है, तो आप उसको दूर करने की कोशिश भी करते हो। मैं इसको ऐसे और मुझे ये भी लगता है कि असली बिग बॉस, ये बिग बॉस एक कॉपी है। असली बिग बॉस तो पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड है हमारा, सारी। क्योंकि जो आपका असली बिग बॉस, जैसे हम तो एक छोटे से दंगल जो न्यूज चैनल्स पे आते हैं, दंगल आते हैं, आपके वहां पे इतनी डिबेट्स हो रही हैं, लोकसभा है असली बिग बॉस, असली लोकसभा, हाँ वो है असली बिग बॉस। एंड ये बिग बॉस एक मिनिएचर वर्जन है जो उसको बनाया हुआ है, ये इसका मिनिएचर वर्जन है। हम अपने
उन कैरेक्टर्स को जीते हुए देखते हैं जिनको हम लाइक करते हैं, उनके हम फैंस होते हैं। बट दिस इज मोर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वो वाले बिग बॉस हम जानते नहीं असली में चल क्या रहा है, कैमरा से लगे हुए, इस सारे बिग बॉस में कैमरा लगे हुए हैं, कैमरा लगे हुए हैं, हमको सोते उठते बैठते उनको अच्छी तरह से समझते हैं रियल और लाइफ अपने कैरेक्टर को भी वहां से ही समझते हैं, क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं उन कैरेक्टर पे डेफिनेटली। और हमारा एक एक्चुअल लाइफ वाली वीर ज़ारा भी हुई इंडिया में, जब पाकिस्तान से कोई पबजी देखते हुए एक आ गई। हाँ। तो अब अंजू इस वीर ज़ारा के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ये सारा बकवास था। वो न्यूज गायब हो चुकी है, न्यूज गायब हो चुकी हुई है। वो लड़की जो आई, वो जो लड़का था, अजीब सा नॉनसेंस कपल था, मुझे नहीं कुछ भी पसंद आया उसमें, मुझे लग रहा बकवास था। ये इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जो ऐसे बिना वीजा के हमारी कंट्री में रह रही, डंकी नहीं मारनी चाहिए, अलाउड नहीं करना चाहिए, और डंकी भी नहीं करनी चाहिए। मैं फेवर में नहीं हूं। एक और पेट्रियोटिक मूवमेंट जो आप भूल गए, सितंबर में हुआ था G20 से एकदम पहले, चंद्रयान 3 जब मून में ये प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया, ये वाली मुझे याद है स्कूल के हर साइंस टीचर से लेके सब ने लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, चंद्रयान पहुंचे, क्योंकि मिशन मंगल मूवी आई, जब मुझे लगा था ये कब हुआ था, मैं बहुत छोटा था, मुझे पता नहीं चलता मिशन मंगल कब लैंड हुआ था, लेकिन जब इस बार चंद्रयान लैंड हुआ, एवरी सिंगल पर्सन वाज ऑन YouTube वाचिंग द चंद्रयान 3 अभी भी तुम बात कर रहे हो तो मेरी आंखों में फिर आंसू आने को हो रहे हैं कि मुझे ये प्राउड आई वाज सक्सेसफुल था, इतना सस्ता मिशन, अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि मुझे फिर वही ओवरवेलमिंग मोमेंट स्टिल अभी भी लग रही है। जबकि फिर नवंबर आया, हमारे बहुत सारे एक फेवरेट सॉन्ग आया, मेरा वहां से फेवरेट सॉन्ग आया, आपको एक फेवरेट सॉन्ग है राम आएंगे तो अंगना सजाओ। वो एक रैंडम हम सिंगर जानते भी नहीं, मैं भी नेम नहीं जानता, लेकिन वो इंस्टाग्राम रील्स की इतनी पावर है कि वो गाना इतना पॉपुलर हो गया। मैं अपना घर से जा रही थी दिवाली पे, अच्छा, तो पहला जो मैंने जैसे डाला ना इंस्टा में, अपना स्टोरी डाली, तो मैं घर से जा रही थी, सजाते सजाते मतलब मैंने इंस्टा में ना वो म्यूजिक ढूंढने के लिए डाला, तो सबसे पहले ना मैंने सिर्फ राम ही लिखा। तो पहला सॉन्ग ही आया, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ यार, मेरी तो आंखों से आंसू आने शुरू हो गए, और मुझे लगा बस यही डालना है, और मैंने फिर वो डाल। और फिर जब लास्ट डे दिवाली हुई तो हम पूजा कर रहे थे, तो फिर उस दिन मैंने अपनी स्टोरी डाली पूजा की, मतलब जब हम डगडग हुए वगैरह सब उसके साथ, तो तब जो सॉन्ग आया ना राम आ गए, तो फिर मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ, वो जो 3 दिन 5 दिन जो भी था, हमने घर सजाया सजाया सजाया, एंड में पूजा की, भोग लगाया, तो बहुत पूरे राम आ गए, राम आएंगे और आ भी गए। सच्ची मुच्ची फील हुआ कि वो एक पूरा उनका वेट किया है, उनका वेलकम किया है, और उनके साथ रहे हैं। यस, ईयर का रिकैप कर देते हैं, हमें ये वाले मूवमेंट्स से याद करने पड़ेंगे, अच्छे मूवमेंट्स से याद करने पड़ेंगे, ये वाले मूवमेंट्स से याद करने पड़ेंगे, तो पूरा ईयर का रिकैप हो रहा है। अब हम ईयर के एंड में आए जा रहे हैं, तो एक और बंदा आया था, हु इज ओरी? Who is Ori? I don't know. Who is liver? Because he lives, so he's liver. We talk, so we are talkers. We are talkers. I don't know what is liver and what is Ori. एंड फिर एक और अच्छी चीज हुई हमारी कंट्री के लिए, लाइक हमने टाइम लग गया, लेकिन हमने करा, जो लेबर वर्कर्स जो उत्तराखंड की टर्नल में फंस गए थे 17 दिन, हाँ, बट स्टिल हमारे वर्क से वो फाइनली निकल गए, एंड नो कैजुअलिटीज हैपेंड, नो वन डाइड। वाली न्यूज तो वरदान मैं आपको बताऊं कि हमारे घर दिन रात चली, क्योंकि मेरे को मैं फिर कहूंगी कि मेरे को न्यूज में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन टोनी ने ऐसे शुरू की कि बार बार मेरा ध्यान जाए, हाय छुट्टी है, अगले दिन क्या होता था, मैं सोती थी रात को देख के कि क्या प्रोग्रेस हुई है, अगले दिन फिर सुबह उठती थी, जैसे वो कहते थे अब हम पहुंच गए हैं, तो मेरा मन होता था शायद अब तो निकल गए हो, लेकिन फिर मैं देखती थी सुबह सुबह न्यूज के, अरे अभी भी यहीं पे ही हैं, तो ऐसे बड़े डिसअपॉइंट से हो जाते थे उनके लिए, मुझे बहुत हुई। फिर जब वो वापस आए तो लगा कि वाकई में उनकी जो घर के लोगों थे, मैंने उनके इंटरव्यू भी सुने, उन्होंने बोला कि हम अब दिवाली मना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनका ये जो रेस्क्यू था, बहुत अच्छा लगा। अब आखिरी मंथ में आते हैं, हमारा रिकैप एंड होने वाला है, लेकिन हम दिसंबर में आ गए हैं। दिसंबर नवंबर पता क्या लगते हैं, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं होते, अक्टूबर से लेके शुरू होते हैं, खत्म हो गए साल, करना क्या, चलो सैटरडे नवंबर मजे करते हैं, दिसंबर संडे आ गया, नया आ गया है, करेंगे
कि मजा भी है संडे का लेकिन एंड भी हो रहा है तो दिस क्या इज करें? लाइक दिस, तो अभी 3 दिन रहते हैं। हाँ, अभी देखते हैं क्या अभी तो होता हम है। ब्लॉग और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी हमें क्या एडिट करनी है, हमारा तो काम चलता ही रहेगा। ठीक है, लो, ठीक है। फिर और हो सकता है जाते जाते इस ईयर को फिर कहीं जगह पे थप्पा लगाने हम पहुंच जाए। Vlog बनाना पड़ेगा। एज हमारा प्रोग्राम बन तो रहा है, तो हो सकता है हम कहीं पहुंच जाएं। और वैसे मेरा कल का वो करतारपुर गुरुद्वारे का प्रोग्राम था जो कैंसिल हो पाकिस्तान का। बिकॉज ऑफ टोनी मीटिंग। तो कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। पर हो सकता है मैं तुम्हारे को ज्वाइन कर रही हूँ पार्टी में। चलो बढ़िया है। एंड फिर इस साल एक और चीज हुई, एज इस साल बहुत सारे इवेंट्स हुए। पहले अंबानी फेस्टिवल हुआ, फिर G20 मीट हुई, फिर धीरू भाई अंबानी का एनुअल फंक्शन हुआ। आपने जितनी वीडियोस धीरू भाई की देखी है, अपने उतनी मेरी स्कूल के भी एनुअल फंक्शन की देखी है वीडियोस, इतनी धीरू भाई की देखी है। मदान, आई एम ऑनेस्ट, मैं धीरू भाई से ज्यादा तुझे ही देखती हूँ। मैं तेरे को वो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते हुए देख के बड़ी प्राउड फील करती हूँ। और मैं ब्लेसिंग्स भी देती हूँ तुझे, तू प्राउड कर, तू मुझे वो प्राउड करवाता रहे और तू प्रोग्रेस करता जाए। दिस इज माय विश फॉर यू। तो इसके साथ थैंक यू रिकैप खत्म करते हैं। 2023 ईयर रिकैप हमने पूरा रिकैप कर दिया है, कैसा गया साल, कितने सैड मोमेंट्स थे, कितने हैप्पी मोमेंट्स थे, एंड अब हम फाइनली करते हैं तो सी यू ऑफ। दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। बट रिमेंबर, ये तो सिर्फ पहला एपिसोड था, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। अभी बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे 2024 में। ये तो बस सिर्फ एक रिकैप था 2023 का, तो स्टे ट्यून्ड। लेकिन याद रखना, अब पता नहीं कौन होएगा नेक्स्ट पर्सन जिसका इंटरव्यू होएगा जो अपनी बातें शेयर करेगा। पर रिमेंबर दैट वो नेक्स्ट पर्सन एक कॉमन मैन नहीं होएगा हमारी तरह। सो बाय गाइस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।